Hello everyone. Come to the next topic, that is plots of psi and psi square. These two plots you have to draw for particle in one dimension. When the particle is in one dimension, so you have to draw psi and psi square plots. देखिए psi और psi square plots draw करने के लिए you have to know कि what is your psi. तो psi फंक्शन आपको पता होना चाहिए. what is psi आपने फाइंड आउट किया है √2/L sin n pi x divided by L and your psi square. If you are taking this psi n, so this will be psi n. 2/L sin square n pi x by L. So this is your psi value, this is your psi square value. So you have to draw the plots for this. तो इसके लिए जो प्लॉट ड्रॉ करते हैं उसके लिए हमें देखिए क्या करना होता है. फर्स्टली यू हैव टू नो द n वैल्यू. n इज इक्वल्स टू 1. सो जब n 1 है तो आपका एनर्जी क्या आ जाएगी, h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8ml स्क्वायर. So when psi is equals to 0, then x will be 0 and L. ये कंडीशन फॉलो होगी. सो फॉर psi देखिए फर्स्ट वन आई हैव टू ड्रॉ फॉर द psi एंड दिस इज फॉर psi n स्क्वायर. सो सी द प्लॉट. देखिए x 0 to L. In this condition this will go like this. This is x is equals to 0 and this is x is equal to n. This type of plot comes for psi single, and psi for psi square this will be 0, x is equal to 0, x is equals to L. Clear? So here will be this type of plot will come. This is touching to the last condition. This is for psi function and this is for psi square. Now come to the next, n is equals to 2 when e is equals to h square divided by 8ml square. But it is for n2, that is 4. 4 हो जाएगा because of n square. So what will be the value? Psi is equal to 0, x is equal to 0, L and L by 2 also. So when this comes, this is your node. ये आपकी node value आ जाएगी. So while drawing this, if this is x is equals to 0, x is equals to L. So in the half that will come L by 2. So how the plot will be like this. This will be the plot. And now for the psi square. देखिए psi square जो है वो probability बता रहा है आपकी. So this value will be positive, not of the negative. So that's why when we draw this, x is equal to 0 and L with L by 2. So for the positivity, the value will come like this plot, and for this is your psi square. When n is equals to 3, then e is equals to h square divided by 8ml square. 3 square, that is 9. So value will be psi is equals to 0 when x is equals to 0, L by 3 and 2L by 3. x की वैल्यू ये आ जाएगी. And while plotting this, you are having x is equals to 0 and x is equals to n. So value will this. 2 nodes will come. So first it go like this, after then this, after then this. This value is L by 3 and this value is 2L by 3. So this type of graph will come. And for psi square, you know that the value will be positive. So x is equals to 0 and x is equals to L. Sorry, L. So here the values are, this will go like this, 1 and this. This is the graph for plot the psi and psi square. Same as you can make for n4, n5 and so on. Whatever the energy is there, so that will divide it. So n4 के लिए if you find that psi is equals to 0 and x is equals to 0, L by 4, L by 2 and 3L by 4. These will be the value of x for n is equals to 4. So same you can draw for this also. So these are the plots.
नाउ वी आर हैविंग सम ऑफ द प्लॉट रिजल्ट। कुछ रिजल्ट डिस्कस करते हैं कि जैसे ही आपने ये प्लॉट बनाया तो उसका कुछ रिजल्ट क्या है। देखिए जो एनर्जी लेवल्स है आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, they are not equally spaced. How you can find that these are not equally spaced? अगर वो equally spaced होगा, जनरल एग्जाम्पल यू कैन से दैट कि अगर आप इसका रिजल्ट देख लें, सो सी देखिए वो कह रहे हैं कि वो इक्वली स्पेस्ड क्या है, नहीं है, इक्वली स्पेस नहीं है। इक्वली स्पेस का मतलब है कि उनके में जो एनर्जी डेल ई की वैल्यू आएगी वो सेम गैप पे नहीं आ रही, मतलब डेल ई की वैल्यू है जो वेरी कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आप एनर्जी ड्रॉ करेंगे वो पहले लेवल में कम होगा, उसके बाद ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये वाला गैप, दिस गैप विल बी इंक्रीजिंग बिकॉज दे आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। देखिए यहीं से आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये आ रहा है आपके पास 4l² डिवाइड बाई 8ml², तो यहाँ से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 4 का गैप आ रहा है, बट व्हेन यू आर कमिंग टू दिस वन, सो दिस इज़ 9, सो 9 - 4 इट इज़ 5, तो यहाँ से जो एनर्जी गैप है वो धीरे धीरे करके बढ़ता रहेगा, इक्वली नहीं आ रहा, सो इट मीन्स कि जो डेल ई की वैल्यू है वो क्या है, इक्वल नहीं है, सो दैट्स वाई ये इक्वली स्पेस नहीं होंगे। नेक्स्ट सेकंड आता है आपका कि जो वेव फंक्शन है besides the wall of the container always have the zero value to the various points in the box। अगर कोई भी आप बॉक्स ले रहे हैं, ये जैसे ये बॉक्स है आपका, जो साई की वैल्यू आती है, वेव फंक्शन साई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो जो साई की वैल्यू आती है वो कंटेनर की जो वॉल है, ये वॉल, ठीक है, ये वॉल्स पे ऑल्सो कंटेनर ऑल्सो हैव जीरो वैल्यू टू द वेरियस पॉइंट, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स पे भी वो वैल्यू क्या रहेगी, ज़ीरो ही रहेगी, क्योंकि देखो कि पार्टिकल जो है वो इस बॉक्स से बाहर तो जा ही नहीं सकता, तो इसमें ही है, सो वॉल्स के अकॉर्डिंग वो जो अलग अलग स्पेस भी लेंगे विद इन द बॉक्स, तो वहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो ही आएगी। एंड यू आर हैविंग बिसाइड द वॉल, अगर साई की वैल्यू ज़ीरो आ रही है तो ये वैल्यू बिसाइड द वॉल n-1 में कंसीडर होगी, एंड दैट n-1 इज़ योर नोड्स। जितना n-1 वैल्यू आएगी वहाँ से नोड्स आ जाएंगे, कंटेनर इज इक्वल्स टू जब वो n-1 के इक्वल आ जाएगा, तो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड नोड। एंड द सिमेट्री ऑफ द वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द बॉक्स, देखो जो सिमेट्री होगी उसमें फंक्शन जो होंगे सिमेट्री वाले और असिमेट्री वाले, वो जो साई फंक्शन है देखिए जो ऑड वाले होते हैं, साई 1, साई 3, साई 5, साई 7, इस तरीके के जो साई फंक्शन हैं दे आर सिमेट्रिकल, एंड साई 2, साई 4, साई 6, साई 8, दीज टाइप ऑफ फंक्शंस आर असिमेट्रिकल। हाउ दे आर डिवाइडेड, देखिए जो नोड आती है उसके अकॉर्डिंग ये डिवाइड हैं कि जो 1, 3, 5, 7 है वहाँ पर ये सिमेट्री शो करेगा, मतलब अगर आप साई फंक्शन को देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये साई डिवाइड है सिमेट्रिक और अन सिमेट्रिक में, लाइक टू द विद रिस्पेक्ट टू द नोड्स। एंड मोर ओवर जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मतलब फर्स्ट है कि आप साई स्क्वायर निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन, तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती, क्योंकि पार्टिकल का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बट अगर आप पार्टिकल्स बड़ा लेते हैं, कोई बिग पार्टिकल लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो कि जो लार्ज पार्टिकल्स हैं, जब लार्ज पार्टिकल होगा इट मीन्स जो n होगा वो लार्ज होगा फॉर द लार्ज पार्टिकल, सो व्हेन n इज लार्ज पार्टिकल स्पेंड इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, वो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करेगा एज प्रेडिक्टेड बाय द क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल ने जो दिया था देखो वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए दिया था, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए उसने यही बोला था कि लार्ज पार्टिकल जो है उसके बारे में क्या है कि प्रेडिक्शन हो सकती है, और स्पेंड भी करेगा वो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, जितने भी पॉइंट हैं वहाँ पर सभी पॉइंट पे वो इक्वल टाइम देगा लार्ज पार्टिकल, ठीक है, और उसकी प्रेडिक्शन भी हो सकती है। तो ऐसा किसने बोला था, क्लासिकल ने। तो जब हमने क्वांटम को रीड किया तो वहाँ से भी हमारे पास यही रिजल्ट आया कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, बट व्हेन वी आर टेकिंग n एज अ लार्ज वन, तो लार्ज के लिए जो रिजल्ट आया वो क्लासिकल के साथ मैच किया। सो व्हेन क्लासिकल एंड क्वांटम बोथ थ्योरी रिजल्ट मैचेस, जो दोनों के रिजल्ट हुए वो मैच हो गए, सो दिस prediction is called the Bohr
कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल को जो है नाम दिया गया बोहर कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल व्हेन क्वांटम रिजल्ट मैचेस विद द क्लासिकल वन फॉर लार्ज पार्टिकल्स ऑफ वैल्यूज n, कि वो जो था बड़ा पार्टिकल वो अपने पूरे जिस भी स्पेस में था वो वहाँ सभी पार्टिकल सभी पॉइंट्स पे इक्वली टाइम स्पेंड कर रहा था। तो ऐसा ही क्लासिकल ने भी बोला था। तो फॉर लार्ज पार्टिकल्स के लिए दोनों जो है वो मैच कर रही थी। लेकिन वैसे जो क्वांटम है वो किसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं, माइक्रो के लिए फाइंड आउट करते हैं। सो दैट्स वाई व्हेन इट मिक्स मैचेस विद ईच अदर, सो इसको बोहर कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल बोलते हैं, ये याद रखना। और जो प्रोबेबिलिटी मेनली बताएगा दैट वैल्यू विल बी साई एन स्क्वायर। मतलब आपको पता ही है कि जो साई एन स्क्वायर है दैट गिव्स द प्रोबेबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी एक्सप्लेन करेगा। अब एक चीज़ और, जो आपकी L वैल्यू है, मतलब जो 0 to L ये जो आप लेंथ लेके चल रहे हो बॉक्स की, इफ़ यू फाइंड दिस L, अगर आप ये n की वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो वो क्या आती है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि हाउ वी कैन से दैट कि जो L है लेंथ है उस पर डिपेंड कर रही है। सो हमें पता है कि जो एनर्जी वैल्यू होती है वो होती है n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8ml स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट इसको इक्वेशन लेंगे एंड वी नो दैट जो E है एनर्जी वो क्या होती है, p स्क्वायर बाई 2m भी होती है, बट लैम्डा जो होता है वो h बाई p होता है, और यू कैन से दैट p इज इक्वल्स टू h बाई लैम्डा। सो हेयर वी आर हैविंग द एनर्जी वैल्यू दैट इज h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m लैम्डा स्क्वायर। दिस यू कैन से द इक्वेशन नंबर सेकेंड। बाय इक्वेटिंग, अगर आप इक्वेट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 and 2 को, सो व्हाट यू विल गेट, बोथ द एनर्जी वैल्यूज आर देयर। सो टेक दिस n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8ml स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m lambda square. So some of the terms will cancel and remaining are n square divided by 4l square is equals to 1 upon lambda square. When we find the L square, so L square will be n square lambda square divided by 4, and but L is equals to your n lambda by 2, and this will be in the form of under root this. So what will you get here? आपको अगर ये इसको इस तरीके से लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, एक तो n पे और एक lambda by 2 पे। दिस बोथ टर्म्स आर देयर, टू टर्म्स आर देयर। सो फ्रॉम हेयर इट वॉज कंक्लूडेड दैट कि जो लेंथ है, जो आप बॉक्स की लेंथ ले रहे हैं, मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। दिस n विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। जितनी भी हाफ वेवलेंथ होगी उसका इंटीग्रल पार्ट जितना होगा वो आपकी ये क्या होगी, लेंथ होगी। तो यहाँ से हम L की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास।